सो हेलो, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। रेशो का सम किया आप लोगों ने? नोटबुक में सॉल्व किया? So question number 2 is the following ratios and information related to business of Patel Trading Company. So यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग कंपनी बताया हुआ है, उसका डिटेल आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बोला है कि फाइंड आउट 4 थिंग्स, दैट इज फाइंड आउट द सेल्स अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, सन्डी डेटर्स अमाउंट एंड सन्डी क्रेडिटर अमाउंट. दिस 4 अमाउंट यू हैव टू आइडेंटिफाई विद दिस फॉर्मूलाज. So अगर क्वेश्चन आप देखोगे, so they have given you the credit period allowed to the debtors, stock turnover ratio they have given you, credit period allowed by suppliers also they have given you 1 month, gross profit ratio they have given you, and the gross profit amount also they have given you in the last one, that is 3 lakh, and the opening stock they have given you 1,50,000. So you have to identify the 4 things. So you have to solve in the Excel. In the previous lecture we have done with the question number 1. This was the question number 1, that is your advanced journal entry. And the question number 2, you can rename from over here, that is ratio. Okay, so here, question number 2. Whatever they have given you, you can write over here. Like they have given you the credit period allowed to the debtor, that is 2 months. So you can write over here. Period 2 months. Second, that is stock turnover ratio 8 times. So you have to write over here, that is stock and third one is credit period allowed by supplier, that is 1 month. Credit is 1 month. Okay. Fourth one is gross profit ratio they have given you. Gross profit ratio is equal to 25%. Okay. And the is opening stock they have given you 1,50,000. And the last one is gross profit ka amount. Is equal to 3 lakh. You have to identify your sales amount, closing stock amount, and debtor amount and creditor amount. Okay. This is your question I have written over here. So these 4 things you have to find out one by one. ठीक है. So first will इसमें से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज यू आर हैविंग, वो आप लोग पहले फाइंड आउट कर सकते हो. दैट मीन्स आपके पास अभी यहाँ देखो देखो यहाँ पे बोला है कि क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, you have to apply this formula that they have given you the answer directly 2 months. So what the formula will be your क्या फॉर्मूला है क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर के लिए? फॉर्मूला क्या है? योर एवरेज डेटर्स अपॉन योर, व्हाट इज योर फॉर्मूला? For what, ma'am? Okay, so this is your question
एंड आपको यहाँ पे ये 4 चीजें फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज है जो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, उसके लिए फॉर्मूला क्या है. जो चाहिए तो फॉर्मूला लिख के ले सकते हो. दैट इज योर क्रेडिट डेटा, नहीं क्रेडिट डेटा नहीं. व्हाट इज द फॉर्मूला? एवरेज डेटर. एवरेज डेटर so the formula is average debtors upon net sales. This is the formula and you have to multiply over here by 12. Why 12? Because in the question they have given you 2 months. That means this is a month, so you have to multiply with this 12. अगर यहाँ पे बोला होता days, so you have to multiply the 365 से. अगर यहाँ पे बोला होता weeks, so you have to multiply with the 48 or 52. जो मेरा रहेगा वीक वो, ठीक है. नॉर्मली 52 वीक्स होते हैं, बट सम कभी कभी आपको 48 वीक्स भी बोल सकता है. सो इफ सम इज सेइंग लाइक 48 वीक्स, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई 48 से करना पड़ेगा, ठीक है. बट ये सम में आपको 12 बोला है, तो मंथ बोला है तो हमने 12 ले लिया है. बट ये सम में मुझे डेटर का अमाउंट चाहिए, जो अमाउंट मेरे पास नहीं है. मुझे सेल्स का अमाउंट चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है. मुझे ये दोनों तो फाइंड आउट करने को बोला है. सो ये फॉर्मूला मैं पहले सॉल्व नहीं कर सकती. आई कांट सॉल्व दिस फॉर्मूला एज अ फर्स्ट. ओके, सो जस्ट गो फॉर द सेकेंड वन. जस्ट ट्राई आप सेकेंड सॉल्व कर पाते हो या नहीं. जस्ट सेकेंड वन. सेकेंड क्या बोला है अभी आपको? स्टॉक टर्नओवर रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉक टर्नओवर रेशियो? दे हैव गिवन यू द आंसर इन टाइम्स. सो यू कैन से द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. यहाँ पे आपको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है. तो फॉर्मूला हुआ COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. क्या आपके पास COGS है? यू डोंट हैव COGS ऑल्सो इन द क्वेश्चन, वो आपको फाइंड आउट करना है. एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. बट इन द क्वेश्चन ओनली ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन. सो आपको क्लोजिंग स्टॉक तो फाइंड आउट करना है. मतलब ये फॉर्मूला भी आप सेकंड नहीं कर सकते, ये COGS आपके पास नहीं है. कोई भी सॉल्व करने से पहले आपके पास कोई भी एक चीज तो होनी चाहिए ना. अगर 2-3 चीजें दी हुई है, अगर आपको 2 चीज में से एक चीज अगर मिसिंग रहेगा, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. बट यहाँ पे दोनों चीजें मिसिंग है, तो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. सो हम लोग देखते हैं थर्ड वन. थर्ड सॉल्व होता है क्या वो देखते हैं. थर्ड वन के लिए क्या बोला है? क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर. उसके लिए क्या फॉर्मूला है? सेम फॉर्मूला यहाँ पे जो आपने अप्लाई किया है. क्या फॉर्मूला लगेगा? बट यहाँ पे जहाँ पे आपने डेटर लिया है, वहां पे आपको क्रेडिटर लेना है. दैट इज एवरेज क्रेडिटर अपॉन नेट. क्रेडिटर मतलब कौन? जिससे आपने सामान परचेस किया है. द क्रेडिटर दैट इज योर सप्लायर. सो यहाँ पे आपको परचेस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है. ठीक है, सो आपको ये फॉर्मूला आया और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में बाय 12, बिकॉज यहाँ का भी आंसर आपको 1 मंथ दिया हुआ है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है. देखते हैं नेक्स्ट. आपको बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट इज 25%. तो वो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फोर्थ वन, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 25% आपको दिया हुआ है. दे हैव गिवन यू द 25%. बट अगर आप देखोगे लास्ट में सिक्स्थ वन, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट भी वो लोग ने दिया हुआ है 3 लाख. दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि दिस 25% इज योर 3 लाख. 3 लाख आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में. दैट मीन्स ये 3 लाख क्या क्या है? 25% है.
बट हम लोग को 100% चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड है? योर ग्रॉस प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन योर सेल्स. सो इफ यू डू दिस कि 25% के लिए 3 लाख है, तो हाउ मच परसेंटेज फॉर 100%? सो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो कि अगर 3 लाख 25% है तो 100% इज हाउ मच? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 25, हाउ मच? 12 lakhs. 12 लाख. दैट मीन्स आपको सेल्स का अमाउंट मिला. सो हियर यू कैन राइट योर सेल्स अमाउंट, दैट इज 12 लाख. समझ में आया सेल्स का अमाउंट कैसे आया? You have to do over here, that is cross multiplication. If your sales, if your gross profit amount is your 3 lakh and the 3 lakh is your 25% and your sales is 100%, because gross profit is depend on your sales amount. So यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको नेट सेल्स मिल गया है यहाँ, दैट इज योर 12 लाख. अभी आपको सेल्स मिल गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट वाला. कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला था? अलाउ पीरियड बोला हुआ है. क्रेडिट को कितना पीरियड आपने अलाउ किया है वो आपको बताया हुआ है. फर्स्ट क्रेडिट पीरियड जो अलाउ किया है वो कितना पीरियड है? 2 मंथ्स बोला हुआ है. मतलब इसका फॉर्मूला आप बना सकते हो. यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज डेटर. नहीं, मुझे तो डेटर पता ही नहीं है, डेटर ही तो फाइंड आउट करना है मुझे. तो डेटर नहीं पता है तो जस्ट लिव इट एज अ नॉर्मल. नेट सेल्स पता है, यस मुझे पता है 12 लाख इज इक्वल टू करके 12 लाख उधर से ले लो आप. मुझे 12 लाख पता है. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विथ 12, और ये एज इट इज नॉर्मल आएगा आपका 2 मंथ्स जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. ये 2 मंथ्स क्या है? दे हैव गिवन यू इन द क्वेश्चन, दैट इज दिस वन, दैट इज योर 2 मंथ्स. ओके. एंड इन दिस फॉर्मूला यू विल गेट योर डेटर का अमाउंट, बिकॉज नेट सेल्स मुझे पता है दैट इज 12 लाख. सो जस्ट मल्टीप्लाई इट. कैसे सॉल्व करोगे? मैथ्स आता है आप लोगों को? दिस इज 12 लाख, यहाँ पे डिवाइड है, इसको आपको 2 मंथ्स में लेके जाके मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला? नेक्स्ट 12 लाख मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज योर 2 मंथ इज इक्वल टू योर डेटर का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12. सो यहाँ पे हम लोग का ये इक्वेशन बना. क्या इक्वेशन बना? ये 12 लाख जो यहाँ पे डिवाइड में था, इसको हम लोग ने यहाँ पे लेके जाके मल्टीप्लाई किया, दैट इज 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 2. कितना आता है? 24 lakh. 24 लाख इज योर अमाउंट आया यहाँ पे. और ये हम लोग को डेटर का अमाउंट अभी तक पता नहीं है, तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे वापस लिख सकते हो, दैट इज योर ये अमाउंट है. ठीक है. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 12 जो है मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लो जरा. तो डेटर इज मैम ये 1 करोड़ 2 लाख है. क्या बोल रहे हो? मैम ये 12 लाख इसका आंसर नहीं आएगा. किसका? इसका मैम सेल्स का. कितना आएगा फिर? मैम ये और एक जीरो यहाँ पर आएगा. कैसे जीरो आएगा यार? कितना जीरो बढ़ाओगे आप? 3 लाख तो ऑलरेडी मेरा 25% है. अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपको क्या करना है, 3 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 25 से डिवाइड करना है, तो अभी तो भी आपका आंसर आ जाएगा. अगर आपका आंसर इस तरह से नहीं आ रहा है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आ रहा है, आप कैलसी पे ये ले सकते हो. कैलसी पे 3 लाख रुपीज का अमाउंट लो और डिवाइड बाय सीधा 25% कर देना. दैट मीन्स 3 लाख मेरा 25% है, कैलसी पे जो भी अमाउंट आएगा वो आपका 100% होगा. 3 लाख डिवाइड बाय 25% डायरेक्टली. ये मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ रहा है तो 2 ऑप्शन है. ठीक है. तो आपको 12 लाख का अमाउंट आएगा. तो अगर आपको 12 लाख सेल्स मिला तो आप ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज अगर एक अमाउंट मिसिंग रहेगी तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, 12 लाख आया था, 12 लाख को हम लोग को क्या करना है अभी? डिवाइड करना है. किससे? 12 से. करो जरा कितना आता है, तो आपको डेटर का अमाउंट भी मिल जाएगा. डेटर इज इक्वल टू 0.5. 2 lakhs. 2 lakhs. इनको क्या अलग ही आंसर आ रहा है निधि को.
मैम मुझे पता नहीं, मैं कैलसी में जो कर रही हूँ वो आ रहा है। सिर्फ नॉर्मल बोल रही हूँ मैं आपको, करने को भी मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो यार। अभी यहाँ पे क्या है, हम लोग ने 12 लाख जो मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग ने लिया, 12 लाख मेरा सेल्स था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड पे था तो हम लोग ने यहाँ पे जाके उसको मल्टीप्लाई किया। सो दिस यू गॉट 24 लाख ओवर हियर, एंड आफ्टर दैट दिस 12 इज मल्टीप्लीकेशन, तो आफ्टर इज इक्वल टू के बिफोर जाएगा तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग ने डिवाइड किया 24 लाख को डिवाइड किया 12 से, सो यू गॉट डेटर का अमाउंट दैट इज 2 लाख। सो यहाँ पे जाके आपको डेटर का अमाउंट लिखना है, दैट इज योर 2 लाख का अमाउंट। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में? तो इसके लिए आपको Yes. प्रैक्टिस बहुत लगेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला एक तो पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑल्सो एंड कैलकुलेशन ऑल्सो। धीरे धीरे कैलकुलेशन करोगे तो भी अच्छे से हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको दो बताया, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लाइक 3 लाख के लिए 25% है तो 100% के लिए हाउ मच अमाउंट, तो आप ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अदरवाइज आप अमाउंट को डायरेक्टली परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मैंने क्या बताया आपको, 3 लाख को डिवाइड बाय, अगर आप 25% कर रहे हो तो भी आपका आंसर 12 लाख आना ही है। ठीक है। सो अभी ये फॉर्मूला हो गया मेरा, ये फाइंड आउट करके हो गया। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगर आपने ये मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट किया कि दैट इज योर सेल्स का अमाउंट इज योर 12 लाख, सो आप ये इक्वेशन यहाँ पे लगा सकते हो, दैट इज योर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू योर सेल्स का अमाउंट। ठीक है। सो यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स करना है। सेल्स का अमाउंट मुझे पता है, दैट इज 12 लाख का अमाउंट, सेल्स का अमाउंट मुझे पता है। प्रॉफिट का अमाउंट पता है आप लोगों को? यस, प्रॉफिट पता ना, 3 लाख रुपया। सो इज इक्वल टू योर प्रॉफिट का अमाउंट इंटर। सो इफ यू नो द सेल्स का अमाउंट एंड यू नो द प्रॉफिट का अमाउंट, यू कैन गो फॉर द इजीली कॉस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। दैट इज, अगर सेल्स मेरा 12 लाख है और प्रॉफिट मेरा 3 लाख है तो कॉस्ट इज हाउ मच, क्योंकि 9 कॉस्ट lakh. प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, दैट मीन्स योर कॉस्ट विल बी योर 9 लाख, बिकॉज कॉस्ट इज योर 9 लाख, प्रॉफिट इज योर 3 लाख, तो 9 प्लस 3 इज इक्वल टू योर 12 लाख। तो हम लोग यहाँ पे अभी रिवर्स गए, रिवर्स जाके हमने कॉस्ट फाइंड आउट किया। सो कॉस्ट को आप सीओजीएस भी बोल सकते हो, कॉस्ट बोलो या सीओजीएस बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है, कॉस्ट प्लस सीओजीएस स्लैश कॉस्ट, दोनों एक ही है, 9 लाख। अभी आप ये वाला स्टॉक इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या? देखो जरा, हो सकता है आपसे फाइंड आउट। कौन सा वाला फाइंड आउट होगा इजीली? सेकंड वाला फॉर्मूला हो जाएगा। स्टॉक टर्नओवर का रेशो क्या है? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दैट इज योर सीओजीएस का अमाउंट इज योर 9 लाख, जस्ट टेक अ 9 लाख का अमाउंट, सीओजीएस मेरा 9 लाख है। अभी आपको यहाँ पे एवरेज स्टॉक चाहिए। एवरेज स्टॉक का मतलब क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, बट ये जो डिवाइड बाय 2 है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, यू हैव ओपनिंग स्टॉक? यस, इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू द ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 1,50,000। 1,50,000 आपके पास है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज 9 लाख अपॉन 1,50,000 आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, 1,50,000 प्लस यू हैव क्लोजिंग, नहीं यू डोंट हैव क्लोजिंग, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको क्लोजिंग जैसा है वैसे ही लिखो, क्लोजिंग, इसके बाद डिवाइड बाय 2। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? 1,50,000 into 2. 1,50,000 इंटू 2. यस, वो कर सकते हो। जरा सॉल्व करके मुझे एक बार आप भी आंसर बताओ। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे क्रेडिट पीरियड अलाउ करके बताया था डेटर का, तो मैंने डेटर फाइंड आउट किया था, वैसे सेम चीज यहाँ पे भी आपको से कितना आ रहा है? 3 लाख। फाइनल आंसर चाहिए।
9 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, 3 लाख ही आएगा ना मैम आंसर। आंसर 3 लाख कैसे आएगा? मैम फिर 9 लाख डिवाइड बाय 3 लाख करेंगे तो 3 लाख ही आएगा ना। सॉल्व नहीं, मुझे ऐसे मत बताओ, आप सॉल्व करके बताओ। बुक और पेन लो, सॉल्व करो। क्वेश्चन में 8 टाइम्स भी दिया हुआ है ना, तो आप सोल्यूशन इजीली कर सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन, दैट इज योर 8 टाइम्स। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ये 8 टाइम्स आपको दिया हुआ है, फिर आपको यहाँ पे बोला है 9 लाख अपॉन 1,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, इसको आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। सो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या कर सकते हो, 9 लाख मल्टीप्लाई 2 कर सकते हो। 9 लाख जो आपका अमाउंट दिया हुआ है उसको मल्टीप्लीकेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे 18 लाख आएगा। मैम किसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने? 9 लाख को, ये 9 लाख जो है ना फ्री है ना, उसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, क्योंकि ये इधर डिवाइड बाय इज इक्वल टू के उस बाजू जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो आप 9 लाख से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 18 लाख आया। अगर 18 लाख को आप देखोगे तो नॉर्मली उसको फिर डिवाइड बाकी का जैसे का था वैसे वापस मिल जाएगा आपको। 1,50,000 नहीं, 1,50,000 नहीं, एक मिनट, क्या था आंसर? आया आप लोगों को आंसर? मैम नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। अभी नॉर्मली यहाँ तक तो हम लोग ने किया है, 8 टाइम्स आपको आंसर दिया हुआ था, एंड COGS इज 9 लाख। ठीक है, एंड यहाँ फॉर्मूला एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 आप लोग का आंसर है। ठीक है, नॉर्मली ये है। हम लोग ने किया COGS, मुझे पता था, यहाँ पे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग में मुझे ओपनिंग ही पता है, ओनली ओपनिंग आई नो दैट इज 1,50,000, क्लोजिंग मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 भी है। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये 9 लाख जो होगा, ये जो 9 लाख है उसको मल्टीप्लाई आपको 2 से करना है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो इससे। और बाकी मैम का जो इसको डिवाइड बाय 2 से किया, ये उसके जो बाद डिवाइड से बाय 2 है ना, 1 सेकेंड, ये जो डिवाइड बाय 2 है इसको आपको 9 लाख से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका ये फर्स्ट स्टेप होगा। बाकी का ये जो बचा 1,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो बच रहा है, इसको आप क्या करो, इस साइड लेके जाओ, इस साइड मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये भी होल डिवाइड बाय, एक्चुअली हम लोग पूरा मल्टीप्लीकेशन में डाल रहे हैं। 2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैंने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, बाकी का जो भी होगा मैं इससे मल्टीप्लीकेशन करूंगी, दैट इज